Now today we will see how to input values from the user in C. Okay, now this is very important because अभी तक जितने भी हमने programs लिखे हैं उसमें we have assumed values in the variable. ठीक है, तो वो कोई सेंस नहीं बनता उस प्रोग्राम का because those programs were running on some fixed set of values. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे how to input values in a variable in C. Now हमने एक फंक्शन पढ़ा था printf. Now printf function was used to print the values on the screen, to print something on a screen. कोई भी आउटपुट अगर हमें स्क्रीन पे चाहिए तो उसके लिए we use the printf function. Okay, now to get input from the user we use the scanf function. So to get input from the user, scanf function is used. Scanf function is used. Now this function is present in the stdio.h header file. जितने भी input और output से related functions होते हैं उनका declaration is there in the stdio.h. So normally we include this header file in the beginning of the program. मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कुछ compilers में ये फाइल को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ती है because this this header file is automatically included by the compiler. So you need not include this header file at the beginning of the program. But at times कुछ compilers में ऐसा नहीं होता है तो उस केस में आपको इस header file को beginning of the program में include करना पड़ता है. ठीक है. Now scanf function is used to take input from the user. So today we'll see how to use the scanf function. ठीक है. Now for this we take an example, the same example to input two numbers from the user. The most simple example, we input two numbers from the user and find the sum and print the sum of the two numbers. ठीक है. बस फर्क ये जो हमने प्रोग्राम पिछले बार लिखा था to find the sum of two numbers, the difference will be कि वो प्रोग्राम हमने fixed set of values के लिए लिखा था, but this program, in this program we will be inputting the value from the user using the scanf function. हम लिखेंगे वही hash include stdio.h hash include conio.h. ठीक है. अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज करते हो प्रोग्राम रन करने के लिए तो एट टाइम्स दीज फाइल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी included. That you can see accordingly. Then void main, ये तो हम हर प्रोग्राम को इसी तरह से स्टार्ट करते हैं बिकॉज सी का कोई भी प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन से ही रन होना शुरू होता है. ठीक है. नाउ दो नंबर्स ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है तो वी विल रिक्वायर थ्री वेरिएबल्स हियर. So suppose we take three variables and declare them as integer type and say a, b, c. ठीक है. तो दो नंबर्स ऐड करने का प्रोग्राम है तो we will declare three variables. a and b वो दो नंबर्स होंगे जिनका हमें सम निकालना है and the sum will be calculated in the third variable that is c. Now a and b की वैल्यूज हम यूजर से इनपुट कराएंगे and C में उसका sum store करके and then we will print the result. Now हम लिखेंगे मैसेज एक printf enter first number. I'll tell you the why we are writing this printf function. अभी मैं explain करूंगी. Then इसके बाद हम लिखेंगे
Now this is the complete program to add two numbers and the two numbers are input from the user. Now यहाँ सबसे पहले हमने ये जो लाइन लिखी है print f enter the first number. Now this is, जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, I'll just mention the output here. ये आउटपुट है प्रोग्राम जब आप रन करोगे तो लाइन बाय लाइन ये प्रोग्राम रन होगा. सबसे पहले क्या कर देगा, इट विल प्रिंट एंटर द फर्स्ट नंबर. सो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एंटर द फर्स्ट नंबर. जो भी आपने प्रिंट एफ में लिखा वो एज इट इज प्रिंट होकर के आ जाएगा. तो इट विल राइट एंटर, कोलन का साइन आ जाएगा एंड यहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ आएगा. ना ब्लिंक करता हुआ कर्सर क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ दिस scanf फंक्शन. scanf फंक्शन इज used to input a value from the user. अगर हमने सिर्फ printf फंक्शन का यूज किया होता तो ये कर्सर नहीं आता. scanf फंक्शन क्या कर रहा है, ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक क्यों कर रहा है, इट इज वेटिंग फॉर द यूजर टू टाइप अ वैल्यू. क्योंकि इसे ये scanf फंक्शन में हमने लिखा है scanf इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा %d. नाउ इफ यू रिमेम्बर, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आपके जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, इंटीजर्स के लिए %d यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f, स्ट्रिंग के लिए %s एंड लॉन्ग के लिए %ld. ठीक है. तो सिंस वी आर हमारे जो वेरिएबल्स a एंड b हैं, दे आर ऑफ इंटीजर टाइप. तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में वी हैव टू मेंशन द फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू वी वांट टू इनपुट. तो हम किस टाइप की वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं, इंटीजर. तो इंटीजर वैल्यू का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d. सो वी आर बेसिकली टेलिंग द scanf फंक्शन कि जो वैल्यू हम इनपुट करने जा रहे हैं दैट शुड बी एन इंटीजर. ठीक है. तो अगर हमने यहाँ फ्लोट वैल्यू इनपुट करानी होती तो यहाँ पे हम %d की जगह वी वुड हैव यूज्ड %f, या कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए हम %c यूज करते हैं. सो दिस हैज टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप of the variable which you want to input from the user. Now इसके बाद inverted comma close करने के बाद हम comma लगाते हैं and then we write ampersand का साइन लगाते हैं जो and का होता है, and then वो variable का नाम जिसमें आपको value input करानी है. So सबसे पहले हमारा first जो number input होगा that will get उसको हम a में store करें. a है ये, A में हम फर्स्ट नंबर इनपुट करेंगे. सपोज द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज 10. ओके. तो जैसे ही यूजर यहाँ पे 10 एंटर करेगा, दैट 10 वैल्यू मेमोरी लोकेशन दैट इज रिजर्व्ड फॉर A. मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है इन द रैम, एंड व्हेनेवर यू इनपुट अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर या असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल, दैट वैल्यू गेट्स स्टोर्ड इन दैट मेमोरी लोकेशन. तो जैसे ही यूजर यहाँ पे कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा, इंटीजर वैल्यू, ये उस वेरिएबल में, उस वेरिएबल को जो भी मेमोरी अलॉटेड है वहां पे जाके ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी. ठीक है. नाउ व्हाई वी गिव दिस एम्परसेंड, ये याद रखना आप हमेशा कि scanf में यू हैव टू यूज द एम्परसेंड बिफोर द नेम ऑफ द वेरिएबल. printf में हमें एम्परसेंड का साइन नहीं लगाना पड़ता है. ठीक है. नाउ इसका कारण क्या है कि जब भी आप कोई वैल्यू इनपुट कराते हो, सपोज यूजर ने 10 वैल्यू इनपुट करी, अब इस वैल्यू को आपको स्टोर कहाँ करना है, ए का जो एड्रेस है, ए वेरिएबल को जो भी मेमोरी अलॉटेड है उस एड्रेस पे जाके ये 10 वैल्यू को, उसे जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर करी है उस पे जाके इस वैल्यू को स्टोर करना है. तो एम्परसेंड का जो साइन है, एंड का साइन है, it returns the address of a variable. मतलब जब भी आप लिखते हो ampersand a means इसको आप रीड करोगे address of a, address of a. Now this is not a program part, ये जस्ट मैं डिस्क्राइब करने के लिए लिखा है. तो ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू आपने यूजर ने टाइप की होगी कीबोर्ड से, ये a का एड्रेस पता करेगा क्या है मेमोरी में, और वहां जाकर के वैल्यू को स्टोर कर देगा यहाँ पे. ठीक है. नाउ द सेम थिंग वी आर डूइंग फॉर द सेकंड नंबर. वी आर एंटर द सेकंड नंबर. तो अब क्या होगा, लिखाएगा एंटर द सेकंड नंबर.
एंड अगेन कोलन साइन के बाद कर्सर ब्लिंक करता हुआ आएगा. दैट मीन्स again it is waiting for you to type a value. This scanf function. Again what we are doing is हम integer type value input कराना चाहते हैं. तो हमने लिखा format specifier दिया %d and again address of b. तो अब क्या होगा, जो भी यूजर वैल्यू टाइप करेगा, सपोज 20 यूजर ने टाइप करी वैल्यू 20, so this 20 value will be stored at the address of b. ampersand b का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ b. तो ये क्या करेगा, b को जो भी मेमोरी एलोकेटेड होगी रैम में, उसमें जाके ये जो वैल्यू है जो यूजर ने टाइप की उसको स्टोर कर देगा. ठीक है. नाउ वेरिएबल्स को मेमोरी में होल्ड करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इसे अभी आपने इनको ऐड भी करना है. तो ऐड करने के लिए वो वैल्यूज कहीं पे स्टोर होंगी, तभी तो आप उन वैल्यूज को एक्सेस कर पाओगे. सो व्हेन वी वांट टू ऐड टू नंबर्स, वी हैव टू फर्स्ट स्टोर द टू नंबर्स इन द मेमोरी, जहां से प्रोसेसर वो वैल्यूज को पिक करेगा, उनको ऐड करेगा, उनका सम कैलकुलेट करेगा, एंड देन ओनली इट कैन डिस्प्ले द रिजल्ट. ठीक है. तो इसके बाद आपका दोनों वैल्यूज इनपुट हो गई, आप एंटर की प्रेस करोगे, then what will happen, c is equal to a plus b वाली लाइन रन होगी. so the sum of a and b, that is 10 and 20 ऐड हो करके c में स्टोर हो जाएगा. so वेरिएबल में का जो भी सम है, that will be c. then c written, तो sum is तो as it is लिखा हुआ आ जाएगा, कोलन का साइन आएगा, एंड देन जहां पे आपने %d लिखा है, तो %d पर वाली जगह पे मींस %d means here an integer value will be printed. okay, and which integer value will be printed, the one that is given in the list. तो यहाँ पे लिस्ट में कौन सी वैल्यू है, c. तो c की जो भी वैल्यू है इस जगह पे प्रिंट हो जाएगी. so the sum will be printed as 30. so if we run this program now, इस प्रोग्राम का फायदा, बार अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हो विथ अ डिफरेंट सेट ऑफ, सपोज अगले बार जब आप प्रोग्राम को रन करते हो, you give totally different values for a, b and c, so your answer will be different. now suppose हमने प्रोग्राम रन करा और उसने सबसे पहले पूछा enter the first number. this time I gave say 25 as the first number. तो क्या हो, a वेरिएबल में 25 वैल्यू स्टोर हो जाएगी. ठीक है, मेमोरी है ये. सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू जब मांगी उसने, सेकेंड आई सेड 35, तो ये 35 वैल्यू आपके दूसरे वेरिएबल b में जाकर के स्टोर हो जाएगी. देन दोनों नंबर्स a एंड b का सम कैलकुलेट होगा एंड इट विल बी इन c. सो c में आपका क्या आंसर आ जाएगा, c में आ जाएगा आपका इन दोनों का सम, that means 60. 35 plus 25 will be 60. so c में c वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी 60 एंड लास्ट में आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, लास्ट में आउटपुट प्रिंट हो जाएगा is 60. ठीक है. so that means अब इसका फायदा क्या है, जब आप इनपुट करा रहे हो फ्रॉम द यूजर, when you are inputting the value from the user, then you can run the program any number of times. आप इस प्रोग्राम को कितने भी बार रन कर सकते हो for different set of values. आप हर बार a और b की different value, आपका प्रोग्राम दोनों numbers का sum calculate करेगा and display the result accordingly. so this is the advantage of using this is the advantage of inputting the value from the user. सेम हमने ये प्रोग्राम जब पहले लिखा था उसमें हमने क्या किया था, a में फिक्स वैल्यू 10 डाल दी थी, b में वैल्यू, सो एवरी टाइम यू रन द प्रोग्राम यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. 10 एंड 20 ऐड होकर के द आंसर विल ऑलवेज बी 30. so there is no point of writing such a program which is going to run on same set of values again and again. so this is a more general program
इसे आप जितने बार रन करोगे हर बार ये पहला नंबर पूछेगा, दूसरा नंबर पूछेगा एंड उनको ऐड करके उनका सम डिस्प्ले करेगा. सो दिस इज अ मोर, it can run on any set of values. Ask the user for two values and calculate the sum and display the. Now इस एक चीज है, अगर हम ये इस प्रोग्राम में आई विल टेल यू द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दीज टू लाइन्स. नाउ आप सोच रहे होगे कि वैल्यूज इनपुट कराने के लिए तो फंक्शन हमारा scanf यूज होता है, देन व्हाई आर वी यूजिंग दिस printf फंक्शन हियर? कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है कि वैल्यूज इनपुट करने के लिए scanf फंक्शन यूज होता है, तो हम ये printf फंक्शन क्यों दे रहे हैं या इसे देने का फायदा क्या है? ठीक है, so I'll write the same program without using the printf function and then I'll explain you why this line is necessary. So now I'll write this program without using the printf function. तो हमने वही सेम प्रोग्राम को hash include, then hash include conio.h, then void main. बाकी प्रोग्राम में सेम रखने वाली हूँ, से a b c तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए. So now 2 bytes each will be allotted to a b and c variable. तो सपोज मेमोरी में ये तीन वेरिएबल्स आपके क्रिएट हो जाएंगे a b and c नाम के. ठीक है, इसके बाद मैंने कोई printf वाला फंक्शन नहीं लिखा और सीधा लिख दिया scanf %d %a और फिर मैंने लिख दिया scanf %d %b, c is equal to a plus b and then result printf sum is %d and c की वैल्यू को प्रिंट करा दिया. ठीक है, so I've just written the same program, only the thing is यहाँ पे दो लाइंस लिखी थी हमारी, दो printf फंक्शंस लिखे थे हमने इस जगह पे जहाँ पे मैंने एरो मार्क किया है, उन दो लाइंस को मैंने रिमूव कर दिया है. ठीक है, now we will see the output of this program and compare it with the program we have written earlier. अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा, इस ऑर्डर में, इस टॉप डाउन ऑर्डर में ही प्रोग्राम रन होता है. नाउ सबसे पहली जो लाइन रन होगी, a b c तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे मेमोरी में. ये होगा तीनों वेरिएबल्स मेमोरी में उनको स्पेस अलॉट हो गई. इमीडिएटली scanf फंक्शन कॉल हो जाएगा. ठीक है, कोई printf फंक्शन नहीं लिखा है तो सीधा scanf फंक्शन कॉल होगा और काम है to accept a value from the user या to input a value from the user. ठीक है, अब होगा क्या, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो बस आपका प्रोग्राम रन होगा और यहाँ पे एक ब्लिंकिंग कर्सर आ जाएगा. इस जगह पे एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ आएगा. कुछ नहीं पता आपको, आप now a cursor is blinking, so you will come to know कि you have to enter some value. अब आपको कुछ नहीं क्या मांग रहा है आपसे और कितनी वैल्यूज मांग रहा है. इट इज जस्ट ब्लिंकिंग, द कर्सर इज ब्लिंकिंग. अब आपको ये नहीं पता कि एक वैल्यू टाइप करनी है आपने या दो वैल्यू, सो द कर्सर इज जस्ट ब्लिंकिंग. ठीक है, अब आपको अगर आप कंपेयर करो हमारे पिछले प्रोग्राम से, हमने एक printf फंक्शन यूज किया था और उसमें लिख दिया नंबर. सो दिस इज एक्टिंग एज अ प्रॉम्प्ट. ये क्या कर रहा है, इस जगह पे हमने जो printf फंक्शन को कॉल कर दिया था जिसमें हमने लिखा था एंटर द फर्स्ट नंबर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक मैसेज लिखा आ रहा था प्रोग्राम रन होने पे, एंटर द फर्स्ट नंबर, कर्सर वाज ब्लिंकिंग इन फ्रंट ऑफ इट. तो उससे आपको क्या पता चल रहा था कि द प्रोग्राम इज आस्किंग यू फॉर अ वैल्यू टू बी एंटर्ड. वो एक मैसेज था यूजर को कि पहला नंबर एंटर करो. सो बेसिकली इट इज प्रॉम्प्टिंग यू टू एंटर अ नंबर. ठीक है, अगर हम वो printf फंक्शन नहीं लिखते हैं, सीधा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर, इस जगह पे ब्लिंक करना शुरू कर देता है कर्सर, एंड वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द प्रोग्राम आस्किंग यू फॉर, कुछ नहीं पता चल रहा है.
ठीक है, आप अंदाज से कोई एक वैल्यू टाइप भी कर दोगे, सपोज 10 टाइप किया आपने, अगेन फिर से आपका कर्सर ब्लिंक होता रहेगा यहाँ पे। नाउ यू विल इमेजिन कि अब ये कर्सर क्यों ब्लिंक हो रहा है। नाउ बेसिकली व्हाई इट इज ब्लिंकिंग, नाउ it is asking you for the second queue for two different values, two different integer values. So when you will provide the and press the enter key, then only the C is equal to A plus B line will be executed. दोनों का sum calculate होगा and the output will be printed as sum is so and so. आपका ये आ जाएगा sum is and 30. Now मैम आपका वैसे के वैसे ही, लेकिन एक प्रॉब्लम के साथ, जब आपने प्रोग्राम रन किया आपको नहीं पता चल रहा था कि वो क्या मांग रहा है आपसे, ठीक है ना। जब आपने प्रोग्राम रन किया, a simple cursor was blinking on the output screen, didn't know what to do, what is the cursor waiting for exactly। जब मैंने प्रोग्राम लिखा और कोई और रन कर रहा है, तो उसे नहीं मालूम है कि why is cursor blinking, what is it asking you for, ठीक है। तो इसीलिए ये मैसेजेस देना जरूरी होता है, प्रॉम्प्ट मैसेजेस कहलाते हैं। ये प्रॉम्प्ट करते हैं यूजर को कि अभी क्या करना है आपको, ठीक है। सो जस्ट बाय एडिंग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमने यहाँ पे क्या लाइन लिखी थी, प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये बेसिकली बस एक मैसेज था which will flash on the screen. So when you run the program, it will say enter first number, and यहाँ पे फिर आपका cursor blink करेगा because of this scanf function. तो at least you know what the program is asking. कोई ये मैसेज मिल रहा है प्रोग्राम की, enter the first number, so you will go ahead type the first number whatever you want to, ठीक है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे, दोबारा यहाँ पे फिर से एक प्रिंटफ फंक्शन लिखा होगा जो आपसे कहेगा एंटर सेकंड नंबर। यहाँ पे now you know it is asking you for a second number, you will type the second number and press the enter key, and now the sum will be printed as sum is 30. So basically ये जो printf फंक्शन है जो हम scanf के जस्ट पहले लिखते हैं, this prompts या asks the user to input a value। बेसिकली ये बता रहा है यूजर को इन एडवांस कि आपको एक वैल्यू टाइप करनी है, ठीक है, या कौन सी वैल्यू टाइप करनी है। आप ऐसा भी लिख सकते थे यहाँ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो पता चलता कि आपसे अब पहले ए की वैल्यू मांगी जा रही है, आपसे बी की वैल्यू मांगी जा रही है। नाउ दिस मैसेज इज टोटली अप टू यू, जो भी मैसेज में लिखना चाहते हो वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। The same message will be flashed on the screen and that prompts the user to do the further action। वो यूजर को प्रॉम्प्ट करता है, मतलब बताता है कि उसको आगे, so it is prompting you to enter number, या it is prompting you to enter the value of a, you in advance कि आपको अब आपसे a की वैल्यू मांगी जा रही है, तो आप टाइप कर दो a की वैल्यू, ठीक है। So it is always good to use these printf functions before the scanf function, जिससे कम से कम यूजर को पता चले कि क्या वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोग्राम आपसे। Because see, you are writing a program, आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हो आप अपने खुद के लिए, प्रोग्राम is always written by you but it will be used by someone else। आप उसके प्रोग्रामर हो, आपने उस प्रोग्राम को लिखा है, पर प्रोग्राम को यूज कोई और करेगा, तो यू हैव टू कीप इन माइंड द यूजर। आपको यूजर की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम लिखना है। आपने प्रोग्राम लिखा है तो आपको पता है आपका प्रोग्राम क्या क्या वैल्यूज आपसे मांग रहा है, यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली। बट जो प्रोग्राम रन करेगा उसे नहीं मालूम है
क्योंकि से एंड ही डजंट आपके प्रोग्राम में क्या क्या वैल्यूज किस ऑर्डर में मांगी जा रही हैं, ठीक है. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिंट अ मैसेज बिफोर द स्कैनफ फंक्शन सो दैट द यूजर कम्स टू नो क्या वैल्यू उससे एक्सपेक्ट की जा रही है, ठीक है. Now we'll take one more very simple program based on this only, and then you can write any program using this function. You will input, do the necessary calculations and print the result. So suppose I'll write a program, to input the radius of a circle and print its area and circumference. ठीक है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है सी में टू इनपुट द रेडियस. नाउ यू नो कि अगर मैं ये नहीं भी लिखती लाइन की इनपुट द रेडियस, सो यू नो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड द circumference of area of the circle and circumference of the circle कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ रेडियस की जरूरत होती है, ठीक है. नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, जिसको आप लिखोगे सी में पाई यानी कि 3.14 इंटू आर, ठीक है. नाउ दिस इज द मल्टीप्लाई ऑपरेटर. एंड सिमिलरली सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है आपका? 2 pi r, so you will write it as 2 into 3.14 into r, ठीक है. तो ये तो आपने फॉर्मूले लिख लिए. अब आप प्रोग्राम में क्या लिखोगे? एवरी टाइम यू विल इंक्लूड द हेडर फाइल्स एज दे आर रिक्वायर्ड ऑलवेज. ये पार्ट तो आपने हमेशा लिखना ही है, so you will include it always, okay. Then मेन फंक्शन से आप अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करोगे. नाउ अब आपको सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा रेडियस के लिए. सो आई एम टेकिंग टाइप इंटीजर, ठीक है. आप चाहो तो फ्लोट भी ले सकते हो. तो मैंने लिया एक वेरिएबल r विच इज फॉर रेडियस. देन दो वेरिएबल्स लिए हमने फ्लोट, एरिया एंड से सर्कमफ्रेंस के लिए सर्कम, ठीक है. दो वेरिएबल्स ले लिए, एक में एरिया कैलकुलेट करेंगे, एक में सर्कमफ्रेंस. नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है? रेडियस की वैल्यू को इनपुट कराना है यूजर से. सो व्हाट यू विल राइट? यू विल prompt the user, you will print a message which will be displayed on the screen which says enter the radius, ठीक है. सो ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया था. ये किस लिए देते हैं? जिससे कि यूजर को पता चले कि प्रोग्राम आपसे क्या वैल्यू मांग रहा है. सो यू नो इट इज आस्किंग फॉर द रेडियस, सो यू कैन टाइप द वैल्यू अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? स्कैनफ फंक्शन का यूज करोगे. नाउ सिंस रेडियस इज डिफाइंड ऑफ इंटीजर टाइप, सो द फॉर्मेट स्पेसिफायर वील यूज इज %d, %r, ठीक है. आप 2-4 प्रोग्राम्स लिखोगे, आपको ये सारे सिंटैक्स याद हो जाएंगे. इसके बाद अब आपके पास रेडियस आ गया. एरिया निकालने के लिए आपको और कोई चीज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है. अब आप सीधा फॉर्मूला लगा दोगे. एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो पाई की वैल्यू हमने डायरेक्टली लिख दी 3.14 इंटू आर. एरिया कैलकुलेट हो गया. इसी तरह से हमने लिख दिया सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू आर. दोनों फॉर्मूले लगा के हमने एरिया और सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करा दिया. नाउ द ओनली थिंग इज आई हैव टू प्रिंट द आउटपुट. तो आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्कल इज %f. अब मैंने यहाँ पे %f क्यों यूज किया इंस्टेड ऑफ %d? बिकॉज हमने जो एरिया वेरिएबल लिया है इट इज ऑफ फ्लोट टाइप. तो फ्लोट टाइप वैल्यू को प्रिंट करने के लिए द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड इज
%f. ओके, सिमिलरली हमने ऐसे प्रिंट करा दिया, प्रिंट f circumference of circle is %f, और यहाँ पे circum वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया. ठीक है, लास्ट में हमने get ch लगा दिया, एंड दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम. नाउ अगर आप इसमें देखो, यहां तक का जो प्रोग्राम है, ये जो 2 लाइंस हैं, दिस इज इनपुट. मैं बार बार आपको बताती हूँ कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, दिस इज द सीक्वेंस. सबसे पहले आप वैल्यू इनपुट कराते हो, डेटा इनपुट करते हो, उसे प्रोसेस करते हो, एंड देन आउटपुट इज जनरेटेड. ठीक है, तो एरिया एंड सर्कमफ्रेंस अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए व्हाट इज एक्टिंग एज इनपुट. और सर्कमफ्रेंस अगर निकालना है तो उसको निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? रेडियस. ठीक है, तो रेडियस हमने इनपुट है, सो द रेडियस, ये 2 लाइंस आपकी इन वाली लाइंस हैं. दीज 2 लाइंस आर द प्रोसेसिंग. यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, कैलकुलेशन हो रहा है. ठीक है ना, आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और एरिया और सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करा रहे हो, एंड दीज 2 लाइंस आर योर आउटपुट. दे आर प्रिंटिंग द आउटपुट. अब आपका एरिया कैलकुलेट हो चुका है, सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट हो चुका है, उसको डिस्प्ले कराना, यूजर मतलब स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना, दैट इज द आउटपुट. सो एवरी प्रोग्राम, यूजुअली एवरी प्रोग्राम विल टेक सम इनपुट फ्रॉम द यूजर. उस पे कुछ प्रोसेसिंग करेगा. प्रोग्राम आप किस देखते हो? टू डू सम प्रोसेसिंग. ओके, एंड देन आउटपुट विल बी प्रिंटेड. सो ऑलवेज एनी प्रोग्राम यू टेक, इट विल वर्क इन दिस ऑर्डर. अब इस बेसिस पे आप कई सारे प्रोग्राम्स लिख सकते हो. सो जस्ट ट्राई आउट सम प्रोग्राम्स. I'll just give you a list of programs which you have to try on this basis. Simple formula based programs हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है. You just have the values of the variables, do some basic calculations and print the result. ठीक है. Now the first program you have to write is input the principal amount, time and rate of interest from the user, and print and calculate the simple interest. So the first program is this. तो आपको बेसिकली ये 3 वैल्यूज इनपुट करानी है एंड SI को कैलकुलेट करा के प्रिंट कराना है. ठीक है. सेकेंड प्रोग्राम इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, यहाँ पे आपको इनपुट क्या क्या कराना है? L एंड B, लेंथ एंड ब्रेथ आप इनपुट कराओगे, एंड यू कैन प्रिंट द area of the triangle. You can also print the perimeter also. Area you can write here and perimeter of a rectangle. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो, find the area of a right angled triangle. ठीक है. सिंपल हम जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको इसमें क्या राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है. तो यहाँ पे आप बेस और हाइट 2 वैल्यूज आप यूजर से इनपुट कराओगे, एंड you will calculate the area using the formula half into base into height. So basically आपको input कराना है, you have to apply the required formula and then you have to print the output. So that is only you have to do in every program.
ये सारे प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपको कुछ इनपुट कराना है, you have to do some calculation on it and then finally you have to print the result. अब इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला बेस्ड से प्रोग्राम लिख सकते हो. You can write one program, input the temperature in degree centigrade and convert it in Kelvin. ठीक है, अभी हम सिंपल ले रहे हैं कि टेम्परेचर आप इनपुट कराओ यूजर से डिग्री सेंटीग्रेड में एंड कन्वर्ट इट इनटू केल्विन. सो यू नो द फॉर्मूला. केल्विन में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, सेंटीग्रेड है प्लस 273. तो जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला. अगर 40 डिग्रीज को आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, so just add 273 to it and you will get the equivalent temperature in Kelvin. So just try out these 4 programs on the basis of the program that we have written earlier. You have to just make use of the scanf function that we have learned now. ठीक है. So the purpose of giving these programs is कि आप scanf का जो हमने अभी पढ़ा है उसका मैक्सिमम यूज करो so that you can know how to use the scanf function. Okay, so this is all for today's class, and in the next we will be learning about some new topics. We will be learning about operators and expressions. अभी तो हम ऑपरेटर सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे तरह के ऑपरेटर्स होते हैं. So we'll be learning about those in the next class, and we'll be learning how to write expressions. अभी तो simple expressions लिख रहे थे तो हमने directly formula लगा दिया, but how to use brackets and all that we learn in the coming class. So I'll end this class here. Just do these programs, write these programs and run them on whatever mode you want and just check the results. आप उनको आपको आंसर चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, write the program, run the program and manually भी आप उस चीज को करके देखो calculation, and your manual calculation result should match the result that you are getting on the computer. So that is how you can check whether your program is running correctly or not. Okay.